Dear guys, myself BN Singh from Solar Technology. Now you all are welcome back to Solar Technology physics classes. Today we are studying current electricity. What is current electricity? The study of flow of electrical current. The study of flow of electrical current in electrical circuit is called current electricity. So we will study the current electricity in different modules. We have prepared around 14 modules in which entire courses will cover of current electricity. So in module 1 we have introduction to current electricity. First module is introduction to current electricity, then electrical current, third one is electric current in conductor, drift velocity and relaxation time, fifth one is resistance of a wire, temperature dependence of resistance, then Ohm's law, the battery and electromotive force. Ninth one is DC current circuit, direct current circuit, Kirchhoff's law. You can also read Kirchhoff's law or Kirchhoff's law. Two laws are there. One is Kirchhoff's current law and another one is Kirchhoff's voltage law. So we will study. Later on in module 10 we have heating effect of current, then grouping of cells, electrical measuring instruments. Various numbers of electrical measuring instruments are there. So we will study in module 12 and module 13 color codes of resistance. This is widely useful for electronic circuit as well as in electrical circuit also. So and finally in 14th module we will study important numerical problems for NEET, G, main and advanced, and objectives related to entire chapter of current electricity. So dear guys, now we start with the introduction of current electricity. What is current electricity? So current electricity, current electricity is actually in the study of electrical circuit. We have in the current electricity comprises of electrical circuit. What is electrical circuit? Electrical circuit is a combination of a circuit including or comprises of one is voltage sources, that is active sources or active elements and passive elements. In case of active elements we have battery, cells, and in passive elements we have resistor, capacitor and inductor. So we will study separately what is a battery, how electromotive forces are developed, how current is passed, what is current, what is a resistor, what is capacitor and what are the inductors. So actually you see what is a resistor. Resistor is an element, is a passive element, and capacitor is a passive element, inductor is a passive element. So active element, what is active element? Active elements are those elements which supplies power, which supply energy to the circuit. Whatever be the circuit, the energy supplied to the circuit is called active element. The element which supplies energy to the circuit is called active elements. And in passive elements, the resistor, capacitor and inductor are there. Resistor is a source which always opposes the current, opposes the flow of current through it. And if some current is passed through the resistor by maintaining the potential difference, say one circuit is here, I am just drawing a circuit.
This is the voltage source, and we can say this one is the battery, or you can say battery or cells. This is a resistor. This is an inductor, and this is a capacitor. What is a battery? Battery is an active source and always supply energy to the circuit. When a current is passed through the resistor, it tries to oppose it. And if it stay long in दोनों terminal के, if both terminals along the terminal some EMF is given, then what happens? The current passes through the resistor is converted into the heat energy. So maintaining the potential difference process, some energy is dissipated in the form of heat in case of resistor. What is inductor? Inductor controls, or inductor opposes the variation. Inductor opposes the variation in current in the circuit, but it does not opposes the steady state current. It does not opposes the steady state current. Whereas what is capacitor? Capacitor is such a type of device which stores energy inside. इसमें energy store रहता है in the form of electrical potential. So its main function of this capacitor is it opposes the variation in voltage. It does not allow it when it is in the circuit. It always tries to maintain the voltage in the circuit. Then say, now see, what is the current? What is electrical circuit? Electrical circuit are a means of conveying electrical energy. This is said, see, this is the circuit. So this is a means of conveying, एक साधन है किसके लिए? Conveying electrical energy from one place to another place. एक जगह से दूसरे जगह जाता है. घर में वायरिंग है, there is also an AC sources there. घर में जहाँ वायरिंग है, you see, you are taking power from the line and you are utilizing this different types of electrical circuits in your house. So in the household also there is electrical circuits in which different types of elements are there in the circuits. So a charged particle move from one place to another, and in this within a circuit charged particle is moving. So electrical potential energy is transferred from a source to a device in which that energy is either stored or converted to another form like heat. So like sound. So in the case of a stereo, you are always utilizing a stereo system. So what is that? In that very circuit, the electrical energy or the energy is converted, electrical energy is converted into sound. Heat in case of heater. In case of toaster, आप toaster देखें हैं, toaster में गर्म होने के बाद toaster बाहर निकल आता है. तो what is there? We are utilizing the electric current as a heater in the toaster, and also we are utilizing the conversion of electrical energy in light. So you see the lamp. You are always observing the lamp in your house. So lamp is the sources. Lamp, you can say the lamp in case of lamp, that is utilizing the electrical energy for conversion into the light energy. So energy, electrical circuits are useful because they are transporting the energy from one place to another without any rotation, without any moving parts. So except when they are moving, except what is moving inside the circuit, only electrons or protons are moving, but there is clearly no moving parts. So energy is transported from one place to another. Here in this chapter we will use the concept of current, potential difference and resistance. So three things are there. What are the we have to study? First is the current.
second is potential difference, current, second is the potential difference, and third is resistance and electromotive force, EMF. What is electric current? What is electric? Flow of charge in the circuit. Flow of charge is called electric current. Flow of charge is called electric current. What is electric current? Flow of charge. Flow of charge is called electric. It's called electric current. That is in the direction. What is the direction? Direction of current is in the direction of flow of positive charge. पॉजिटिव चार्ज जहाँ जिसका मूवमेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ आगे बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उस डायरेक्शन में हम फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं, या जिस डायरेक्शन में अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बैटरी से पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में जा रहा है उसमें माने प्रोटॉन का मूवमेंट जिस दिशा में है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो दिशा जिसमें है उसके उल्टी दिशा में। सो हियर इज आल्सो, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस दिशा में होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का इस दिशा में होता है, सो इसका अपोजिट में। सो करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन दिस, करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द वन डायरेक्शन। So now see, quantitatively, what is current is quantitatively defined in terms of the rate at which net charge passes through a cross sectional area of the conductor. Say one area is like this, one conductor is say this one is. So this one is the cross sectional area, this one is the cross sectional area A. A is the cross section of this conductor, a conductor है. So here what will we see? Just इसको हम हटा देते हैं. So this one is the conductor, this one is the cross sectional area, and current is flowing in this direction. ऊंधी के हिसाब से. So what is I? I is equal to dq बटा dt. I is equal to dq बटा dt. और small I is also equal to dq बटा dt. Here we have two concepts of current. यहाँ हमारे पास दो कंसेप्ट है. क्या क्या कंसेप्ट है? पहला केस वन में है इंस्टेंटेनियस करंट. केस वन इज इंस्टेंटेनियस करंट, and another one is case 2 is average current. What is instantaneous current? At any moment of t, time interval, at any moment of t, so whatever the current is passing through the circuit is called instantaneous current. And you know average current, total current, total charge divided by time. So
Instantaneous current is always defined as dq by dt. This one is dq by dt and average current is q by t. So unless predefined, जब तक हमारा प्रीडिफाइंड नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है हमारा कि इंस्टेंट एवरेज के बारे में या इंस्टेंटेनियस के बारे में, तो जनरली वी कंसीडर द इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट को हम कंसीडर करते हैं. बाय कन्वेंशन करंट डायरेक्शन इज अज्यूम्ड टू बी इन ऑलवेज इन विच पॉजिटिव चार्जेस मूव्स. करंट तो हो गया डिफाइन, लेकिन इसका जो डिफिनेशन ये है, आपका जो डायरेक्शन है इसका, ये डायरेक्शन इज ऑलवेज उसी दिशा में होगा जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज मूव्स. डायरेक्शन जो है उसी दिशा में होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? पॉजिटिव. इसका मतलब P प्रोटीन इज मूविंग इन सच ए डायरेक्शन इन पॉजिटिव. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव पार्टिकल जिसमें मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहे हैं उस दिशा में, या अपोजिट ऑफ नेगेटिव, या अपोजिट ऑफ नेगेटिव, अपोजिट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल. नेगेटिव पार्टिकल माने इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव पार्टिकल जिसमें मूव करेगा उसके अपोजिट दिशा में जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन का करंट का दशा होगा. सो इन ऐसा सिस्टम इज हैपनिंग. इन ऐसा सिस्टम current is unit of current is in SI system, in SI system unit of current is ampere. A-M-P-E-R-E, ampere. Simply we say capital A. So if 1 ampere is equal to क्या हो जाएगा? तो 1 ampere is equal to 1 कूलम पर सेकंड. This is the charge. So household current are also of the order, जो घर में जो भी करंट फ्लो होता है वो भी of the order of few ampere, ज़्यादा नहीं होता है करंट, फ्लो कम रहता है. So what is up? Now we see the flow of charge here. You just come here and see. Now we see flow of charge. हम लोग अभी करंट देख लिए हैं, क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, FLOW, फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज. If current is passing, if a current is passing through this wire, then it implies that a charge is flowing through that bar. कि जो वायर है इसमें अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो हम इसको मान के चलेंगे कि इसमें फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है. और ये फ्लो जो है, फ्लो जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है, इसलिए I is equal to what will happen here? I is equal to dq by dt implies, so यहाँ what is happening? I is equal to dq by dt. So dq is equal to I dt. dq is equal to I dt. This one is same. This one is the equation number 1. From this equation, three cases. From this equation, dq is equal to I dt, where q is the charges, I is the current, and t is the time interval. Time बहुत important है. If given current is constant, पहला है इसमें जो current, whatever current is flowing in this circuit or in this conductor, if current is constant, current अगर constant है, तो we can see that flow of charge can be obtained directly by multiplying that constant current with the given time interval, that is delta q is equal to I multiplied delta q. कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है कितने देर तक, उसे हम कैलकुलेट करके करंट की जितना फ्लो करेगा उसको टाइम से गुना करेंगे, हमारा चार्ज निकल जाएगा. दूसरा केस 1 होगा,
केस 1 में। केस 2 जो है, if given current is a function of time, अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, then the charge flow can be obtained by integration. Say if delta q बराबर क्या हो जाएगा, टाइम, जब हमारा टाइम का फंक्शन है तो से इनिशियल टाइम बटा फाइनल टाइम, और यहाँ हो गया आई डी टी। दिस इज द व्हेन current is a function of time, in that very case dq is equal to integration I dt ti to tf, माने इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, माने से 0 से 4 सेकंड में कितना हमारा करंट फ्लो किया है, तो हम कितना जो करंट जा रहा है वो टाइम से इतना से 4 से 0 से 4 सेकंड तक पार किया है, उसमें आई मेरा डिफाइंड है कितना करंट पास कर रहा है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से हमारा क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। सो केस 3 इफ करंट वर्सेस टाइम इज गिवन, केस 3 एक केस और है, केस 3 है, क्या है कि करंट वर्सेस टाइम इज गिवन, करंट वर्सेस टाइम, माने इस साइड में अगर करंट है, टाइम है, आई साइड में करंट है, क्या है, करंट है, तो करंट वर्सेस टाइम अगर दिया हुआ है तो सिर्फ उसका जो कर्व होगा, ऊपर मान लिया यहाँ 10 एम्पियर फ्लो किया है और 4 सेकंड तक पास किया है, तो ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, पूरा एरिया, ठीक है, इस कर्व में जो एरिया, इसके अंदर में जितना एरिया रहा है वो एरिया हमारा क्यू को डिनोट करेगा, क्या करेगा, क्यू को करेगा, अर्थात चार्ज, कितना चार्ज फ्लो है, ये बराबर हो जाएगा मेरा एरिया अंडर आई टी ग्राम से। इसी केस में आप देख लीजिए कि हमारा 10 एम्पियर का करंट 4 सेकंड तक जा रहा है, तो कितना क्यू, कितना हमारा चार्ज हुआ, एरिया, एरिया क्या है, एक ट्रायंगल है, देखिए, तो इसका एरिया बराबर कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ इंटू 4 सेकंड इंटू 10 एम्पियर बराबर 10 को 4 से गुना कीजिए, 40 और 200 भागा दे दीजिए, काट दीजिए 2 2 और 10 गुने 20 इक्वल टू 20 कूलम। बस इतना आसान है, 20 कूलम चार्ज जा रहा है। सो हमारा 3 केस यहाँ पर आपने देखा, करंट के केस में जब करंट फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज हमको कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज है। पहला केस में था कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, I बराबर dq बटा dt हो गया और dq बराबर I dt। केस दूसरा है कि अगर करंट जो है हमारा वो टाइम के वेरिएबल, इन दैट वेरी केस dq is equal to integration of I dt and ti to tf। तीसरा केस है कि हमारा कर्व अगर दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है टाइम वर्सेस करंट का, तो एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वो हमारा कूलम को डिनोट करेगा, चार्ज को डिनोट करेगा, कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जो आपको याद रखने के लायक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं, आप उसे नोट कर लें। यू सी current is the same for all cross section of a conductor of a non-uniform cross section। अगर इस तरीका का कहीं कोई है जा रहा है तो करंट इज द सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन जो भी है इसमें अगर करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है of non-uniform cross section similar to the पानी, वाटर, पानी अगर फ्लो करता है तो देखिए जो पानी फ्लो करता है उसमें जितना पानी दे रहे हैं शुरू से वही पानी फ्लो करता है, तो क्या होता है जहाँ कहीं मोटा जा एरिया हो जाता है वहां पर उसका फ्लो कम जाता है, और जहाँ पतला होता है वहां पर पानी अगर इसमें फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर यहाँ फ्लो का चार्ज क्या होगा, चार्ज यहाँ फ्लो तेज होगा, यहाँ पर फ्लो पानी का फ्लो यहाँ पर मोट चौड़ा हो गया है पाइप तो यहाँ कम हो जाएगा, फिर यहाँ अगर पतला हो गया है तो फिर तेज हो जाएगा। सिमिलर इज द केस, जैसे पानी के पाइप में जो फ्लो है पानी का जो फ्लो है पाइप के केस में टेढ़ा मेढ़ा में जिगजैग कंडीशन में है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसी तरीका केस हमारा करंट में भी होता है।
क्या हो रहा है, तो चार्ज फ्लो फास्टर, जहां हमारा स्मॉलर एरिया है, जहां स्मॉलर एरिया है, यहां हमारा जो चार्ज फ्लो करेगा वो ज्यादा करेगा, तेजी से करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वहां पर जहां पर एरिया ज्यादा है, यहां पर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर जहां कम है वहां पर हमारा फ्लो अधिक हो जाएगा, चार्ज जो फ्लो करेगा अधिक करेगा। सो चार्ज फ्लो फास्टर इन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एंड स्लोअर इन लार्जर क्रॉस सेक्शन, so that charge rate remains the same। चार्ज रेट जो है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है या dq by dt है, that is remain सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड वन इज, सेकंड पॉइंट जो याद करने लायक है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिमिलर टू वाटर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिमिलर टू वाटर करंट। कंसीडर वाटर, अगर टैंक में, हाइट में, अगर टैंक में अगर हम ज्यादा रखते हैं पानी, टैंक के ऊपर टैंक भरा हुआ है, से कि 10 फीट का पाइप टैंक है, टैंक भरा हुआ है, उसमें एक पाइप लगाकर हम यहाँ पानी दे रहे हैं, तो पानी का जो प्रेशर है शुरू में क्या होगा, हाइट ज्यादा है तो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, हाइट धीरे धीरे पानी आप निकाल रहे हैं, हाइट जैसे टैंक का जो है ऊपर हमारे कहीं टैंक का वाटर टैंक है, ठीक है, और टैंक में पाइप लगा दें, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पाइप लेकर के आप यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर ले रहे हैं, तो यहाँ से पानी निकाल रहे हैं। अब क्या देखिएगा, पानी जब भरा हुआ है उस समय यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, अब पानी का लेवल जैसे कमते जाएगा, पानी का लेवल जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम अगर पानी का लेवल अगर कम गया है, पानी का लेवल कम गया है, नीचे आ गया, पानी का लेवल इतना हो गया है, उस केस में आप देखें कि प्रेशर घट गया। सिमिलर इज द केस विथ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या हो रहा है, जहां इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ, बैटरी से जहां ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, जहां ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जहां हमारा ज्यादा है, तो द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर। इफ अगर हम उसमें क्या करें, तो फ्लो ऑफ करंट हमारा क्या होगा, अगर हम कैपेसिटर यूज करें तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो इसमें हम दिए हैं, कैपेसिटर अगर कहीं हम सर्किट में यूज कर रहे हैं तो सब कैपेसिटर क्या होता है, शुरू में चार्ज होता है, कहीं आप जोड़ देते हैं इसको सोर्स से अगर जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर, इसको सोर्स से कहीं से आप जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर शुरू में क्या होता है, चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद इसमें चार्ज हो जाता है, उसके बाद जब आप इसको डिस्चार्ज आप कर रहे हैं, इससे करंट ले रहे हैं और इसको सर्किट में दे दिए हैं, तो इसमें अगर इसको सर्किट में कहीं दे दिए हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका डिस्चार्ज होते चला जाएगा। राइट, अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, ऐसे करंट हमारा घटते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर करंट कांस्टेंट चाहिए हमको, वोल्टेज इन दैट केस वी हैव टू यूज इट, तब हमको क्या लगाना है, इसमें बैटरी यूज करना है। क्या यूज करना है, बैटरी यूज करना है। बैटरी जब हम यूज करेंगे तो हमको कांस्टेंट करंट, ऑलरेडी कांस्टेंट ईएमएफ मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। सो डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the end points of a wire if capacitor is used, potential difference is slow and hence current भी घट जाएगा। So for current बैटरी, करंट के लिए, कांस्टेंट करंट के लिए हम बैटरी को यूज करते हैं, ठीक है। Then direction of current depends on the motion of opposite electrons. Already we have already said it is not one thing is to be remembered that current is, दो करंट है डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिसमें पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहा है, माने दिस मींस इन द डायरेक्शन इन व्हिच प्रोटॉन्स आर मूविंग, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बट यू ऑलवेज रिमेंबर सम, इसमें भी कुछ इसमें मैग्नीट्यूड भी है, क्वांटिटी इसमें करंट का कितना मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन भी हमको मिल रहा है इन द डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन या opposite of the electron, direction of the flow of electron. But this is not a, this is current is never a vector quantity. Current is not a vector quantity. You always remember, current is not a vector quantity. Vector quantity. However, it has direction. But direction is not defined because
it is not following the parallelogram. ये लॉ को फॉलो नहीं करता है, it does not follow the parallelogram of vector, इसको फॉलो नहीं करता है, से u है v है, इसलिए current is not a vector. You always remember. Okay, then come to DC. Then come to DC current. What is DC current? If the magnitude, one thing is, you see here. शुरू में मैंने अभी डिस्कशन जो कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट हम लोग किए थे कि करंट जो है दो प्रकार के हमको मिला था, एक एवरेज था और एक इंस्टेंटेनियस था। एवरेज हम लोग कह रहे थे जनरल जो एवरेज आ रहा है, और इंस्टेंटेनियस था तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियसली उसको कह रहे थे। उस केस में हमारा क्या था, इंस्टेंटेनियस में यू सी हियर हम लोग देखते हैं कि दो तरह के और एक करंट आया हमारा। वन इज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, वन इज डीसी करंट एंड सेकेंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एसी, और ये करंट है इसको कहते हैं डीसी करंट। कहता है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। डीसी करंट में कितना मतलब होता है, डायरेक्ट करंट है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट वेरी विथ टाइम, डज नॉट वेरी विथ टाइम, एकदम कांस्टेंट जाएगा ये ऑन टाइम वर्सेस, अगर एम्पियर है वर्सेस टाइम टी है तो ये कांस्टेंट जाएगा, कहाँ कहीं भी जाएगा ये कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। It does not vary with time. So, for example, from the battery or DC dynamo are the sources of DC current. क्या है, बैटरी से जो हमें मिलता है, बैटरी से जो मिल रहा है करंट, बैटरी हमारा डायरेक्ट करंट है, उसको डीसी सोर्स बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं, जो हमारा बैटरी से मिल रहा है। अब वन थिंग इज अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? Alternating current is the current which always varies with respect to time. इसका हमेशा इसमें ड्रॉप कॉन्फिगरेशन होना है, इसमें एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड इसका सेम रहेगा, है कि नहीं? इस वन इज इस सेम है, ये करीब करीब सेम रहेगा एम्पलीट्यूड जो है, और इस टाइम के हिसाब से ये वैरी कर रहा है। यहाँ जीरो है, जीरो के बाद पीक आ गया, पीक के बाद फिर नीचे आ गया, उसके बाद इस तरीका से टाइम हमारा बढ़ते जा रहा है और एम्पलीट्यूड हमारा घटते बढ़ते रह रहा है, ठीक, हमारा घट बढ़ रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इफ ए करंट इज पीरियोडिक, एक पीरियड यहाँ से आया, एक साइकिल हो गया, यहाँ से आया तो एक साइकिल, यहाँ से दूसरा साइकिल, फिर यहाँ से इस तरीका से आ रहा है तीसरा साइकिल एंड सो ऑन। सो दिस करंट इज नोन एज पीरियोडिक सर्किट। दूसरा और भी करवा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीका का हो, इस तरीका का भी हो सकता है, इस तरीका से भी हो सकता है। इसमें भी एक साइकिल हुआ, सेकंड साइकिल हुआ, थर्ड। सो different types of varieties of such type of cycles are there, but they are periodic in nature. The constant amplitude is a constant. It has half cycle positive, ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। Half cycle is positive and half cycle is negative. So it is said to be alternating current. जिसको हम alternate बदलते जा रहे हैं, alternating current. One more thing, if a charge Q is revolving, है कोई सर्किल है, एक सर्किल में अगर हम Q को, चार्ज Q है, इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं, इसको अगर हम रोटेट कर देते हैं किस फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा I करंट कितना हो जाएगा, I बराबर Q, चार्ज तो है ये है, अब कितना फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, माने यहाँ से अगर स्टार्ट किया अचानक, यहाँ से एक बार आया तो एक साइकिल, दूसरा, तीसरा,
चौथा एंड सो ऑन। सो इस प्रकार से I इक्वल टू Q इनटू F। ये अभी तक फ्रीक्वेंसी। इन ए कंडक्टर नॉर्मली करंट फ्लो इन ए चार्ज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और केस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, बता रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ा होगा, ठीक है। इसके चारों ओर न्यूक्लियस है, चारों ओर उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट के सबसे बाहरी जो कक्षा है उसमें, ऑर्बिट की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑलवेज करंट जो फ्लो करता है वो डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रॉन पर। इस माने जो ना फ्री इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन से बाहरी कक्षा में है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये वाइब्रेट करता है, एक दूसरे पर ट्रांसफर भी हो सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन टू अनदर, जो जा रहा है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पर, उसको भी हम फ्री और उसको भी हम बोलते हैं करंट। दैट इज आल्सो नोन एज द सो इन ए कंडक्टर नॉर्मली करंट फ्लो ए चार्ज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कहता है चार्ज क्वांटाइज्ड है। कैसे चार्ज क्वांटाइज्ड है? तो क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई क्या चार्ज का ई है, ई द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये कितना होता है आप जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19। ये जो चार्ज है ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। सो चार्ज ऑन एनीबॉडी विल बी सम इंटीग्रल ऑफ ई, दैट इज q इक्वल टू plus minus n into e. So this is also very important, you should have to remember it. Okay, then we have just we want to give you some examples. So just see the example. Okay, आज का चैप्टर थ्योरी इतना ही है। अब हम कुछ देखते हैं, सो दैट इट शुड बी क्लियर, आपको क्लियरिफाई हो जाए। इसके लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके लिए बता रहे हैं आपको। देखिए चार्ज के और इलेक्ट्रॉन्स एम्पीयर के बारे में किस प्रकार से हम करंट को डिफाइन करते हैं। एंड दिस विल बी द लास्ट वन। इसके बाद हम क्वेश्चन कुछ बनाने के बाद हम इसको बंद करेंगे आज का। चलिए आइए जस्ट से कहता है ए कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1, A constant current of 4 ampere passes through a wire। कहता है कोई वायर है, इसमें constant current पास कर रहा है 4 एम्पियर का। कितना है? 4 एम्पियर का। थ्रू ए वायर फॉर 8 सेकंड तक जाता है, 8 सेकंड तक हम पार करते हैं, ठीक है। इस वायर से, पतला एक वायर है ना, इस वायर से कांस्टेंट करंट जा रहा है 4 एम्पियर का। कितना देर तक जा रहा है? 8 सेकंड तक जा रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, I जो है कांस्टेंट है। इसमें हम देख रहे हैं क्या चीज, हमारा करंट जो है क्या है, कांस्टेंट है। सो डेल्टा की हम दिखा चुके हैं, आप लोगों को बता भी चुके हैं। कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है। सो डेल्टा की बराबर क्या होता है, I × डेल्टा की। ओके, सो यहाँ कितना आ रहा है, I इज 4 एम्पियर एंड टाइम इज 8 सेकेंड, 4 एम्पियर, दैट इज 8। ये कितना हो गया, 8 4 32 coulomb. This is the answer. Okay. Now we see the second question. What is second question? A wire carries a current of 2 ampere. ये 2 ampere current flow कर रहा है। What is the charge that has flowed through its cross section? इसका जो cross section है, इससे कितना flow करेगा? In 1 second. 2 ampere है and 1 second में करेगा। How many electrons does? इसमें हमको क्या निकालना है, पहला Q निकाल देना है, Q निकालना है, एंड दूसरा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n निकालना है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकलेगा, you see here I इक्वल टू क्या हो रहा है, Q डायवर्जेंस के लिए हम देखे हैं कि चार्ज जो है I इक्वल टू व्हाट है, QIT। सो Q इक्वल टू I × T इक्वल टू 2, I इक्वल टू एंड 1 is equal to 2 coulomb। हो गया। Now see what is Q? Q is equal to, आप देख